Hello everyone. So what we did in the last class, we were actually doing Debye's theory of lattice specific heat. In the Debye theory, what we saw, in Debye theory, we saw that at very high temperatures, the Debye model reduces to the classical model which was given by Dulong and Pettit. That means at high temperatures, the specific heat of all the solids, they become constant equal to 3R, where R is the gas constant. However, at low temperatures, it is not constant, it is temperature dependent. And what is the temperature dependency? The temperature dependency is a specific heat directly proportional to the cube of temperature T. And this happens at low temperatures, and this is known as the Debye's T cube law. We have already derived this expression in the last class. Now this is the specific heat when T is very less than theta D, where theta D is the Debye temperature. So here we saw that at high temperatures the specific heat becomes constant equal to 3R, which is identical to the expression that was obtained by the classical theory. So we can say that at high temperatures, quantum considerations, they are of almost no significance. Now at very low temperatures, this specific heat becomes temperature dependent. And what is the dependency? It is in the power of T cube. Now we'll see the success of Debye model and its limitations. Now this shows that this law has been verified for a number of substances, and theory given a quite satisfactory account of the observed variation, the heat capacity in the low temperature range. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिल्वर मेटल के लिए इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है, विच इज स्पेसिफिक हीट वर्सेस द एब्सोल्यूट टेम्परेचर. और ये जो सर्कल्स हैं, दे आर बेसिकली द एक्सपेरिमेंटल डेटा, और ये जो कर्व है, दिस इज द थ्योरेटिकल Debye कर्व. तो here you can see that for silver, the match between the theoretical curve and the experimental data is actually very remarkable. Now, from the figure, it shows the experimentally observed specific heat values for the silver as fitted to a Debye curve, and you can see that the agreement is remarkable. ठीक है, जो experimentally observed values है, they are given by the dots in the curve. So, this is of course we should expect of the Debye approximation. और ये जो इतनी अच्छा मैच आ रहा है बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड द थ्योरेटिकल डेटा, ये क्यों आ रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द Debye अप्रोक्सीमेशन. Debye अप्रोक्सीमेशन हमने क्या लिया था कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल नॉट गो टू इंफिनिटी, उसको जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रंकेट करेंगे एट सम वैल्यू. Let that value is Debye frequency denoted by mu d, where mu d Debye frequency represents the highest frequency propagating through the crystal. So using the Debye approximation, Debye put an upper bound to the frequency of the elastic waves which can propagate through the crystal, and that boundation of the highest frequency is denoted by mu d, which is known as the Debye frequency. Next, when T is equal to theta D, when T is equal to theta D, the values of specific heat from equation 5.34 becomes equal to 2.856 R. What is equation 5.34? Equation 5.34 वो है जहां हमने फाइनल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाली थी. तो इस एनर्जी के एक्सप्रेशन में जब मैं T को थीटा D के इक्वल पुट कर दूं, दैट मीन्स व्हेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू द Debye टेम्परेचर, उस केस में फिर जब CV की वैल्यू निकाली, this CV comes out to be 2.856 R, where R is the gas constant. So from this we can define our Debye temperature. How we can define? The Debye temperature of a solid may be defined as that temperature at which the specific heat has the value
2.856 R or 23.67 joules per mole per Kelvin. This we have obtained after substituting the value of the gas constant. So this is how we can define D by temperature. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और उसके अंदर एक शॉर्ट पार्ट आ जाता है लाइक डिफाइन डी बाय टेम्परेचर, देन यू कैन डिफाइन डी बाय टेम्परेचर यूजिंग दिस पैराग्राफ that when the temperature is equal to the d by, then specific heat is this. So d by temperature is nothing but that temperature at which specific heat has the value 2.856 R or 23.67 joules per mole per Kelvin. एग्जाम में जो डी बाय मॉडल अगर तुम्हारा आता है तो इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, जो इसमें सबसे बेसिक चीज इंपॉर्टेंट है वो है द डेरिवेशन ऑफ द टोटल वाइब्रेटिंग एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल which was given by equation 5.34. Then the derivation of specific heat from that energy expression, which is this equation 5.35. ठीक है, और क्या important है, और important है what will happen to the specific heat at high temperatures and at very low temperatures. And at very low temperatures this specific heat जो है it obeys the T cube law which is also known as D by T cube law. उसके बाद ये जो सक्सेस और लिमिटेशंस है इसको शॉर्ट में करना है, ज्यादा इन डिटेल करने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली ड्रॉ दिस कर्व एंड यू कैन शो दैट फॉर एग्जांपल we are considering silver atom, then from this graph you can see the match between the experimental data and the theoretical curve is remarkable, and this remarkable match is because of the Debye approximation taken by the Debye. Now after this इसको अगर रीड करना चाहते हो तो रीड कर लेना, जो मैं इतनी देर से बता रही हूँ वही सब इसमें लिखा है. एक चीज और देख लो, यहाँ पर देखो यहाँ क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा डी कैलकुलेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड हीट कैपेसिटी एट लो टेम्परेचर यूजिंग इक्वेशन 5.31 इज दिस. ये एक्सप्रेशन कहाँ से आई है, एट वेरी लो टेम्परेचर्स हमने जो स्पेसिफिक हीट निकाला था वो हमने ये निकाला था. ठीक है, दिस इज CV is equal to this, तो यहाँ से we can find theta D also. तो theta D यहाँ से क्या आ गया, 1/3 में 77.94 into 5.975 divided by CV into T. यहाँ R 3R जो है उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है, तो थीटा D जो है इट इज डिपेंडेंट. तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से देखो हमें एक चीज इंपॉर्टेंट पता चली कि जो Debye टेम्परेचर है इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, इट इज नॉट अ कांस्टेंट. Debye टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये हमने ऑलरेडी देखा है इन दिस एक्सप्रेशन विच वी हैव डिराइव्ड एट लो टेम्परेचर्स. ठीक है, तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट Debye temperature is not constant. ठीक है, the atomic heat vanishes at the absolute zero, ये सबको पता है. at T tends to zero, CV also tends to zero. ये कहता है अगर Debye थ्योरी परफेक्ट होती तो जो Debye टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए था. ये जो डेविएशन है it might be due to the deficiencies of the continuum approximation used in the theory. ये क्या कहता है कि Debye टेम्परेचर जो है कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी आ रही है. इसका मतलब कि जो ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो ये डेविएशन आ रहा है, ये किसी कारण से तो आ रहा है, और ये जो डेविएशन आ रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द Debye अप्रोक्सीमेशन. Debye अप्रोक्सीमेशन की वजह से जब हमने फ्रीक्वेंसी को ट्रंकेट किया था एट म्यू डी, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस थे दैट वाज इक्वल टू 3 into कैपिटल n. तो इस वजह से जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी इट शोज अ कंटिन्यूम कर्व. फ्रीक्वेंसी जो है हमने वो प्लॉट किया था ना, जेड न्यू डी न्यू भी प्लॉट किया था, इस तरीके से आ रहा था, फिर उसको हमने ट्रंकेट किया था एक म्यू डी. ठीक है, तो यहाँ से बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना. एक तो तुम्हें ये कर्व पता होना चाहिए लाइक व्हाट इज द सक्सेस ऑफ Debye मॉडल, और यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए दैट थीटा डी जो है इट इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है, इतना कर लो, इसमें काफी है.
नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डीबाई मॉडल। इसके कुछ 3-4 पॉइंट्स याद कर लेना, साथ में क्वेश्चन आ सकता है लाइक 2 और 3 मार्क्स का डेरिवेशन के साथ, दैट व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डीबाई मॉडल और द शॉर्टकमिंग्स। द फर्स्ट लिमिटेशन इज the Debye model assumes that only low frequencies are active in the solid. इसका मतलब क्या है, डीबाय मॉडल ने जो फ्रीक्वेंसी थी वो 0 से मिनिमम से मैक्सिमम कितना लिया था, म्यू डी, ठीक है, इंफिनिटी पे नहीं जाने दिया था। तो डीबाय मॉडल ने सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज को ही एक्टिव कंसीडर किया था सॉलिड में, जिस वजह से हमारा जो है इसको हम एक कंटिन्यूम मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट और क्या था, डीबाय ने ये फ्रीक्वेंसीज को म्यू डी पे क्यों ट्रंकेट किया था, विच इज नथिंग बट द डीबाय अप्रोक्सीमेशन। डीबाय ने एज्यूम किया था जो टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं इलास्टिक वेव्स के विद इन द सॉलिड दैट इज इक्वल टू 3 into कैपिटल एन, ठीक है। दिस इज कंट्रारी टू द assumption which is supposed to possess infinite frequencies. Infinite frequencies नहीं ली थी, उसको ट्रंकेट किया था at mu d which is the Debye frequency. और क्या लिमिटेशन लिया था डीबाय ने, और क्या assumption लिया था, जब हमने z न्यू डी न्यू प्लॉट किया था तो डीबाय ने बोला था कि ये जो डीबाय फ्रीक्वेंसी है न्यू डी, ये कॉमन होगी लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए भी और ट्रांसवर्स वेव के लिए भी। बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव जो है दोनों का ही बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि दोनों की जो डीबाय फ्रीक्वेंसी होगी वो कॉमन होगी, तो ये भी एक limitation है। Debye frequency has been taken to be the same for both longitudinal and transverse modes, but this assumption cannot be justified on physical ground because of the differences in the nature of the two waves. Both longitudinal and transverse wave, they behave in a different manner. So how we can assume that the Debye frequency will be same for both the longitudinal and transverse modes. The actual curve बाद में बॉर्न ने बताया था वो इस तरीके से था कि जो डीबाय फ्रीक्वेंसी है ट्रांसवर्स की और जो डीबाय फ्रीक्वेंसी है लॉन्गिट्यूडिनल की वो कॉमन नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी, ठीक है। दोनों की वेलोसिटीज भी डिफरेंट है ना। लेट्स से जो डीबाय फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ट्रांसवर्स वेव की वो म्यू टी है और जो लॉन्गिट्यूडिनल की है वो म्यू एल है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स कर लो, लिमिटेशंस में वही काफी है कि डीबाय ने कंसीडर किए थे ओनली लो फ्रीक्वेंसीज, डीबाय ने नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस को 3n लिया था, तो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज को रूल आउट किया था। थर्ड, डीबाय फ्रीक्वेंसी जो है वो कॉमन ली थी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स मोड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ assumption which says that if Debye model is strictly valid, the values of theta d should have been independent of temperature, but theta d has been found to be vary with temperature. ये ऑलरेडी अभी मैंने सक्सेस वाले पार्ट में बताया था कि Debye मॉडल अगर पूरी तरीके से सही होता तो थीटा डी जो डीबाय टेम्परेचर था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आना चाहिए था, बट वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं आया था। हमने इस एक्सप्रेशन में देखा था दैट Debye temperature is temperature dependent. Next, the last limitation, the contribution of electrons to the specific heat has been totally ignored. Debye ने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट होती है उसको कंप्लीटली इग्नोर किया था और जो एक्चुअल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है सॉलिड का उसको भी अकाउंट में नहीं लिया था। इसका मतलब क्या है, डीबाय मॉडल जो है वो सिर्फ उन्हीं सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब उसके जो बेसिस हैं वो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होंगे सॉलिड के अंदर देन वी कैन नॉट अप्लाई डीबाय थ्योरी टू दोज सॉलिड्स और क्रिस्टल्स, ठीक है। That means this theory does not apply to crystals having more than one type of atoms. It is only valid to the crystals which have only single type of atoms. So this finishes up
with the Debye theory, first we derived the density of, first we wrote some of the assumptions taken by the Debye, then we derived the expression of the density of modes. After deriving density of modes, we tried to derive the expression of the total vibrational energy of the crystal and then the specific heat using that expression. And in this derivation, Debye took an approximation which is known as the Debye approximation, which says that there is a highest frequency propagating through the crystal, which is the Debye frequency denoted by mu d, and this value is common for both the longitudinal and transverse elastic waves. उसके बाद हमने सक्सेस देखा Debye का कि हाई टेम्परेचर्स पे इट इज कांस्टेंट इक्वल टू द क्लासिकल वैल्यू, लो टेम्परेचर्स पे इट इज डिक्रीजिंग एज T cube as the temperature decreases, and this behavior matches with the experimental data. Next, we saw some of the limitations of Debye model. Now, the last topic in this unit or in your syllabus is the comparison of specific heat from Einstein and Debye theory. अगर हम Einstein कर्व बनाए और Debye कर्व बनाए, फिर हम अगर देखें कि जो डिस्क्रिपेंसी है स्पेसिफिक हीट में वो क्या आ रही है और क्यों आ रही है. देखो हाई टेम्परेचर्स पे तो कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, क्योंकि जब हमारा हाई टेम्परेचर है उस केस में आइंस्टीन की एक्सप्रेशन भी Debye की एक्सप्रेशन भी दोनों रिड्यूस हो जाती हैं टू द क्लासिकल वैल्यू इक्वल टू 3r. तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये कर्व जो है सिंगल कर्व होता जाएगा. स्पेसिफिक हीट जो है इट बिकम्स कांस्टेंट एट हाई टेम्परेचर्स. डेविएशन कहाँ पे आ रहा है? डेविएशन आ रहा है एट लो temperatures, or here you can see that Debye curve, this is not Debye, this is Debye, and here you can see that Debye curve जो है it is lying above the Einstein curve. Here we have plotted the specific heat or heat capacity with respect to the temperature, and here we saw that the Debye curve it lies above the Einstein curve. और ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो एट लो टेम्परेचर्स आइंस्टीन जो है जो आइंस्टीन हीट कैपेसिटी है इट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. However, in Debye it is decreasing as T cube. ठीक है, ये जो बिहेवियर है, जो डिफरेंस इन बिहेवियर है, ये क्यों है? क्योंकि Debye ने जो सारे एटम्स हैं उनको इंडिपेंडेंट नहीं लिया था. ही कंसीडर्ड देम टू बी कपल्ड. ठीक है, कपलिंग होने की वजह से इलास्टिक स्टैंडिंग वेव्स बन रही थी. फिर उन स्टैंडिंग वेव्स की हमने टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी निकाली और फिर उससे स्पेसिफिक हीट निकाला. और इसको निकालने के लिए Debye अप्रोक्सीमेशन लिया था जिसमें ओनली द लोअर फ्रीक्वेंसी मोड्स आर टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, 0 से म्यू डी तक लिया था, हम इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज तक नहीं गए थे. ठीक है, आइंस्टीन में हमने क्या किया था? आइंस्टीन में हम पूरा इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज तक गए थे. उसमें हमने क्या किया था? जब एवरेज एनर्जी ली थी तो हमने समेशन लिया था ना, जिसमें एन की वैल्यू हमने 0 टू इंफिनिटी ली थी. ठीक है, लेकिन Debye ने जो फ्रीक्वेंसीज थी वो 0 से म्यू डी ली थी. तो हेयर ओनली द लो फ्रीक्वेंसी मोड्स आर टेकन इनटू अकाउंट, and at low temperatures these have a higher average energy and the temperature derivative than the relatively high frequency Einstein oscillators. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां से समझो, ये जो एक्सप्रेशन आई थी हमारे पास यहाँ पर देखो, एनर्जी जो है हमारी उसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि x हमारा क्या है? x हमने लेट किया था h न्यू अपॉन kBt. तो एनर्जी के अंदर भी न्यू आ रहा है, यहाँ e रेज़ टू पावर x में भी न्यू आ रहा है. फिर इस एनर्जी की हेल्प से ही हमने cv निकाला था. ठीक है, यहाँ fd Debye फंक्शन के अंदर भी न्यू का कंपोनेंट आ रहा है. Debye और आइंस्टीन में क्या फर्क था? Debye ने सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी मोड्स लिए थे, बल्कि जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स भी कंसीडर किए थे. तो इस वजह से जब हम उन वैल्यूज को इस एनर्जी और स्पेसिफिक हीट में डालते हैं तो Debye में ये जो वैल्यूज हैं ये ज्यादा आती हैं एज कंपेयर टू आइंस्टीन. इस
इस वजह से जो डी बाय कर्व है इट इज लाइंग अबव द आइंस्टीन कर्व। एक बार इसको दोबारा पढ़ लो। द रीजन इज दैट इन डी बाय मॉडल द लो फ्रीक्वेंसी मोड्स आर टेकन इनटू अकाउंट and at low temperatures these have a high average energy and temperature derivative than the relatively high frequency Einstein oscillators. लो टेम्परेचर पे हम ऑलरेडी एनर्जी और हीट कैपेसिटी को हम निकाल चुके हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर हमारा डी बाय थ्योरी जो है वो फिनिश होता है, ठीक है। इसके ऊपर एग्जाम में डेरिवेशन आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, लाइक ड्यूलोंग पैटेट का, आइंस्टीन का, डी बाय का, और न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आइंस्टीन मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं तो you have to remember this formula that h into mu e, where mu e is the Einstein frequency, this is equal to theta e into kb, where theta e is the Einstein temperature, kb is the Boltzmann constant, h is the Planck's constant। ये एक्सप्रेशन जो है इसको याद रखना है अगर आइंस्टीन मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, और अगर डी बाय मॉडल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं तो इसका भी मैंने बताया था, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला जो है ये ध्यान रखना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डी बाय फ्रीक्वेंसी एंड डी बाय टेम्परेचर, और जो मैंने अभी नीचे लिखा है दैट इज द रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन फ्रीक्वेंसी एंड आइंस्टीन टेम्परेचर।